নমস্কার, আমার নাম মোহাম্মদ। আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল খড়গপুর থেকে এসেছি। 27 তারিখ আমি এখানে সেটেলকমে এসে জয়েন করি এবং 28 তারিখ থেকে আমাদের ক্লাস শুরু হয়। তো যখন আমি এখানে আসি তখন আমি মোবাইল রিপেয়ারিং সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, কিন্তু এখানে আসার পর থেকে অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে এবং খুবই ভালোভাবে সিপিটিভি সব কিছু করতে পারছি। 3 দিনের বেলায় আমি পাওয়ার আইসি অনবোর্ড থেকে তুলে লাগিয়েছি এবং তাতেও আমি সাকসেস পেয়েছি। এবং 4 নম্বর দিন আমি অনবোর্ড থেকে সিপিইউ তুলে রিভলভ করে পারফেক্টভাবে বসিয়ে সেট অন করেছি। আজকে আমাদের 5 নম্বর দিন। তো আজকে আমাদের সেকশন ছিল লাইট সেকশন। তো এক ডিসপ্লে লাইট গ্রাফিক্স সেকশন ছিল। তো তার মধ্যে আমাদের ডিসপ্লে সেকশনের কিছু স্যার কিছু বুঝিয়েছেন আমাদেরকে। এবারে ডিসপ্লে সেকশন চালু হওয়ার জন্য বা টোটাল সার্কিট সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য আমাদেরকে টোটাল এইসব জিনিস চেক করতে হয়, যেটা ডিসপ্লে লাগিয়ে এবং ডিসপ্লে খুলে করে। ওই যে এবার ডিসপ্লে লাগানোর আগে পর্যন্ত প্রথম আমরা চেক করি কি মোবাইল অন করার পর থেকে পাওয়ার আইসি থেকে প্রথমে 1.8 ভোল্ট কানেক্টরে আসবে এবং তারপর সেটা আসার পরে যে এখানে যেটা লেখা আছে লুব আইসি, সেটা কোনো আইসি মানে লুব আইসি না থাকলেও হবে, যেটা ফিক্সড ড্রাইভার আইসি। সেখান থেকে আমরা পাই ভিএসপি লাইন, ভিএসএন লাইন, যেটা থাকে +5 ভোল্ট এবং -5 ভোল্ট। এটা সিপিইউ ওয়াইজ নামকরণ করা হয়েছে। এবারে যেটা কোয়ালকমের জন্য ভিএসপি লেখা আছে এবং ভিএসএন লেখা আছে, যেটা মিডিয়াটেকের জন্য লেখা থাকতো এখানে এভিডিডি এবং এভিই লাইন, এখানে +5 ভোল্ট এবং -5 ভোল্ট আসে কানেক্টারে। তারপর আসে কি সিপিইউ থেকে রিসেট লাইন 1.8 ভোল্ট কানেক্টারে আসে এবং এখানে ডিসপ্লে লাগানোর আগে কানেক্টর লাগানোর আগে পর্যন্ত সার্কিট এখানে কমপ্লিট হয় এবং ডিসপ্লে লাগানোর পরে যে লাইনগুলো চেক করবো, যে লাইনগুলো পাবো, সেগুলো হচ্ছে সিপিইউ থেকে আসবে আইডি লাইন, আইডি 0 এবং আইডি 1, মতলব মানে আইডি 1 নম্বর লাইন, 2 নম্বর লাইন এবং টিয়ারিং ইফেক্ট আসে কানেক্টারে। এবার তারপরে আসে কি সিপিইউ থেকে টোটাল মিপি লাইন আসে, 10টা লাইন আসে যেটা কানেক্টারে। ওই যে এভাবে সার্কিট কমপ্লিট হয় এবং লাইট আসে। এবং তাও যদি লাইট না আসে তাহলে আমরা সিপিইউ থেকে চেক করি কি 1.4K রেজিস্ট্যান্স রেজিস্টার চেক করি, যেটা গ্রাউন্ডের সাথে অ্যাটাচ থাকে। এবার এটাও হতে পারে যে লাইট না আসার কারণে অনেক সময় আমরা এটা চেক করি না, যে 1.4K রেজিস্টারটা আমরা চেক করি না, যেটা গ্রাউন্ডের সাথে অ্যাটাচ আছে, গ্রাউন্ড থেকে যেটা ডিটাচ হয়ে যায়। অনেক সময় 90% ক্ষেত্রে আমরা কোনোদিনই চেক করি না যে এই রেজিস্টারের ক্ষেত্রে। এখানে আসার পরেই জানতে পারলাম যে এত কিছু আছে একটা লাইট সেকশনের ভেতরে। ওই যে এবং আর যে দুটো রয়েছে 1.2 ভোল্ট এবং 0.9 ভোল্ট, এটা কোনখান থেকে আসছে, এভাবে কিভাবে ওয়ার্ক করছে, এভাবে কিভাবে কাজ করছে, তার সম্পূর্ণ নলেজ নেওয়ার জন্য से टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ा है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फॉल्ट फाइंडिंग में फंस रहे हैं या आपने आईसीयू पर नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का ये हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियो ग्राफिक्स कोर्स है, तो वीडियो कोर्स है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसी टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहाँ पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से ये देखो
बिल्कुल शुरू से क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली ठीक है, देखो मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है, और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में तो ये आपको मिलेगा, जिसमें आपको इससे कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जो जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।